Hello and welcome to MATV Kashmir in Focus. As you know, in this program, we present an information about Pakistani occupied Jammu Kashmir and Pakistani occupied Gilgit Baltistan. I would like to start today's show with the news about load shedding. Load shedding has become a nuisance in Pakistani occupied Gilgit Baltistan and Pakistani occupied Jammu Kashmir. Yesterday, people came out and done a protest in Khaplu because there's 18 hours of shedding. 18 hours without power has caused a lot of traders to wind up this, and the normal routine has also been badly hampered. Pakistani occupied, a committee has been formed, the core committee. It has been formed by retired military officers who have been deprived of their pensions. They are not getting any pensions and they don't have a job and they don't have any other skills that could help them to earn a living. So they have now been protesting for a while and now they have formed a core committee which is going to conduct a campaign throughout the occupied territory of Gilgit-Baltistan. And in another news, again from Gilgit-Baltistan, this time from Darel, the forest guest house was occupied by Frontier Constabulary, which is the paramilitary force which works in coordination with the Pakistan Army. They had occupied the rest house and the offices of the forestry department. Yesterday, local people they thronged up on the office and the rest house, and they kicked them out. This is a big development. It shows that the people of Gilgit-Baltistan have had enough. And it also shows that the fear of military of Pakistan that was instilled in them for 74 years is now waning. Skardu also is suffering from severe load shedding. And again, traders are closing down their businesses. And another news that has come from Pakistan is that the Tehreek-e-Labbaik Pakistan that was out on a long march toward Islamabad have refused to leave their camps in Wazirabad where they were stationed while the negotiations between Imran Khan government and the leadership of Tehreek-e-Labbaik Pakistan were being conducted. Apparently, it is said that the government and the leadership of TLP has come to an agreement, but the details of the agreement are not being made public. So this was a short roundup, and I want to start my show by showing you a picture of desperation. Pictures, photographs, they talk themselves, and they sometimes mean more than 1,000 words written in text or prose or poetry. This picture, which I'll ask my technical team to show you now, is about a woman. She is standing on a bridge gazing at the river Jhelum that is flowing from Indian Union Territory of Jammu Kashmir. Have a look. From India, river Jhelum, towards Pakistani occupied Jammu Kashmir, and this woman who has relatives on the other side of the line of control is gazing, and just take a few seconds and let this image sink in. The desperation, the helplessness, बेचारगी जो इस तस्वीर में नजर आ रही वो अया है कि भारत से जो दरिया झेलम आ रहा है उसको वो खड़ी होकर देख रही है और सोच रही है कि कब ये लाइन ऑफ कंट्रोल मिटेगी और कब हम अपने रिश्तेदारों से
नाजरीन, चलते हैं आज के अहम मुद्दे की तरफ। में समिट हो रही है, क्लाइमेट चेंज समिट हो रही है, और उस इंडिया के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो गए हैं और उन्होंने वहां पे जो तकरीर की है उस हेडलाइंस बनाई। इसके ऊपर मज़ीदारी के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं आपके जाने पहचाने मेजर जी, जो टेरिटोरियल आर्मी के हैं और अब स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल एनालिस्ट पे। आपका स्वागत। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू बिरला साहब। देख यू वेलकम। कैसे देख रहे हैं ये तो कमाल वहां पे ग्लासगो में देखो क्लाइमेट बिल्कुल समिट में? ये, हाँ बिल्कुल। एक तो ये ग्लासगो जो मीटिंग है समिट यूके में, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइमेट के ऊपर मीटिंग है पेरिस के बाद जो हो रही है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो है, अगर आप याद अपना ध्यान वापस ले जाएं, डोनाल्ड ट्रंप जो था यूएस से बाहर निकाल लिया था पेरिस समिट से, मगर अमेरिका अब दोबारा आ गया है इसके अंदर। इसके अंदर दो देश जो नहीं आए हैं और जो इम्पोर्टेंट थे वो रूस और चीन है। और भारत का जो एक बड़ा अहम रोल रहा है, और भारत के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से वहां पर पॉपुलर हुए हैं वो काबिल तारीफ है। और भारत के प्रधानमंत्री का जो भाषण है वो भी एक प्रकार से माइलस्टोन है और बड़ा हिस्टोरिक है। वो जो कुछ चंद एक बातें उन्होंने जो बताई, एक तो ये कि भारत जो है 17% है पॉपुलेशन वाइज, मगर एमिशन जो है 5% ही करता है। और जो भी टारगेट भारत को दिए गए थे पेरिस समिट में, भारत ने वो टारगेट पूरे के पूरे कर लिए हैं और उससे ज्यादा भी किया है। और अभी वो एक 5 पॉइंट एजेंडा के साथ आए हैं और उन्होंने स्पेल आउट किया है। उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, पहली बात कि 2070 तक हम पूरा नेट जीरो एमिशन कर लेंगे, कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त कर लेंगे। दूसरा, हम 2030 तक जो है हमारी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी एक प्रकार से पावर की, वो हम 50% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से हम 45% जो है अपना कट कर देंगे जो कार्बन एमिशन वाली जो एनर्जी है 2030 तक। और इसी के साथ साथ हम 1 बिलियन टन जो है कार्बन एमिशन वो भी कम करेंगे 2030 तक। और इसके साथ साथ हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताई गई है कि 50 गीगावाट्स जो है 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो नॉन फॉसिल फ्यूल है उस पे हम काम करेंगे। तो कहने का मतलब है एक रोड मैप दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे वर्ल्ड को कि भारत बहुत ज्यादा इच्छुक है कि जो कि आपका क्लाइमेट चेंज के बारे में सीरियसली लिया जाए। अगर हम आज ये मिस कर गए टारगेट तो आने वाली जनरेशन आपको माफ नहीं करेंगी। आने वाले समय में डिजास्टर हो जाएगा अगर क्लाइमेट को अभी नहीं ध्यान दिया गया। और कहीं ना कहीं उन्होंने ध्यान लिया है डेवलप्ड नेशन का कि आप डेवलप्ड कंट्री जितनी हैं वो ज्यादा एमिशन करती हैं, तो उनकी जिम्मेवारी है कि वो ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करें। और दूसरी जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको रिक्वायरमेंट है कि उनको चाहिए पावर, उनको चाहिए एनर्जी, क्योंकि उनको डेवलप करना है। आप उनकी मदद करें, आप उनको एक प्रकार टेक्नोलॉजी दें और तभी वो ये कार्रवाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से जो 1 ट्रिलियन डॉलर की जो बातचीत हो रही है एक रिन्यूएबल एनर्जी को एक प्रकार प्रोटेक्ट करने के लिए जो फंड है उसको जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया जाए, टेक्नोलॉजी दी जाए डेवलपिंग कंट्रीज को, स्पेशली किस प्रकार से वो कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले टाइम में सोलर और जो एक प्रकार से विंड एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो स्पीच थी बहुत अच्छी तरीके से ली गई। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी वो काबिल तारीफ था। जिस प्रकार से उन्होंने बोरिस जॉनसन जो प्रधानमंत्री हैं यूके के, और एंटोनियो गुटेरेस जो कि यूनाइटेड नेशन के ओवरऑल बॉस हैं, चेयरमैन हैं, उनके साथ जो बातचीत कर रहे थे, हाथ
कंधे में हाथ लगा के वो दिखलाता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा है और वो जो बात कहते हैं उसका एक मतलब है और वर्ल्ड में जो वर्ल्ड लीडर हैं उसकी सुनते हैं, समझते हैं कि भारत एक जो भी बात बताता है उसके ऊपर अमल करता है। पेरिस एग्रीमेंट में जो भी भारत के लिए टारगेट थे, भारत ने वो टारगेट पूरे किए और यही नहीं टारगेट से ज्यादा किया। और अब जो रोड मैप बनाया है 5 पॉइंट का, तो भारत ने प्रॉमिस किया है कि 2030 तक हम 50% रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे अपने पावर के रिक्वायरमेंट में और 2070 तक हम जीरो एमिशन कर लेंगे। तो सभी लोग समझते हैं कि भारत करेगा और भारत ने ध्यान और दिलाया कि डेवलप्ड नेशन जो हैं, जो ज्यादा पोल्यूट करते हैं, उनका काम है कि वो ज्यादा इसको मदद करें और जो छोटी कंट्री हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्री हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, आप उनको ऑल्टरनेटिव सोर्स दें, उनको आप फाइनेंशियल मदद करें। तो और मुझे लगता है मिर्जा साहब एक बहुत अच्छी जो स्पीच थी और एक बड़ा अच्छा पहल किया है प्रधानमंत्री ने और यह भी बताया गया है कि ऐसी समिट को आपने सीरियसली लेना है। अगर आप इसको समिट को सीरियसली नहीं लेते तो फिर वर्ल्ड में चलेगा नहीं, क्योंकि अगर आप देखें ये ग्लासगो की जो मीटिंग है इसमें चीन और रूस नहीं आए, उन्होंने एक प्रकार से वर्चुअल ही मीटिंग अटेंड की और कोई नई बात नहीं बताई। और ऐसे में अमेरिका वैसे तो ये पेरिस समिट से निकलने के बाद दोबारा ग्लासगो में आ तो गया, पर जो बाइडेन ने भी कोई नए टारगेट नहीं बताए, पुराने टारगेट के बारे में बात की। मगर एक अच्छी पहल है भारत की तरफ से, भारत एक उभर के आया है लीडर बन के और मुझे लगता है आने वाले समय में डेवलप्ड कंट्री हैं उनको जो उनकी जिम्मेवारी है उनको पूरी करनी पड़ेगी। $1 ट्रिलियन का जो एक फंड कलेक्ट करके आपको डेवलपिंग कंट्री की मदद करनी पड़ेगी। मिर्जा साहब जी, बहुत अच्छे आपने तरीके से दर्शकों को कि किस तरह से 5 पॉइंट का एजेंडा लेकर वो किया हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अब देखने है कि कुछ भी वहां पे हुआ है इसको पूरा करने के लिए की जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्री सोशल सोसाइटी जो है भारत की, वो क्या किरदार अदा करती है, क्योंकि हम जानते हैं बड़ा फैक्टर ऐसा है जो आग और फर्नेस ऑयल जलाता है और वो इसको क्लाइमेट चेंज जो है उसको के जो पाबंदियां हैं उस पोलिटिसाइज करेंगे अपने खिलाफ के। इसको कैसे देखते हैं, इस सूरत हाल को कैसे कंट्रोल किया जाए? देखो मिर्जा साहब, इसमें कोई शक नहीं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है और भारत ये भी समझता है कि इसके साथ साथ भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और जो ये 5 पॉइंट का एक रोड मैप दिया है, मुझे लगता है जब हमने पेरिस एग्रीमेंट में जो समिट में जो बातचीत की थी, जो एग्रीमेंट हुई थी, हमने उसका पूरा किया है और हमने यकीन किया है कि उतना ही नहीं उससे ज्यादा जाए। तो जो भी पॉइंट अभी प्रधानमंत्री ने बोले हैं 5 पॉइंट जो रोड मैप है, मुझे नहीं लगता कि उसमें हमें कोई छूट करनी पड़ेगी और हम करेंगे, क्योंकि इस सच्चाई ये है कि अगर हम नहीं करेंगे और दूसरे देश में नहीं करेंगे तो एक डिजास्टर हो जाएगा। आप आग के साथ खेल रहे हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा। और भारत की जो रिक्वायरमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की तरफ बड़े जोरों से जा रहे हैं और उसके लिए अभी गवर्नमेंट जो है काफी एक प्रकार से अच्छी स्कीम लेके आई है, उनको काफी डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट है डेवलप होने की, मगर हमारी रिक्वायरमेंट के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अपने वर्ल्ड के लिए। वो एक बात करते हैं 1 वर्ल्ड 1 पॉलिसी, ये कह रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड एक है। अगर यहाँ पर एक कोने में भी आप नहीं अपनाएंगे पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन तो पूरे वर्ल्ड में डिजास्टर होगा। तो मुझे लगता है कि इस चीज के लिए पूरा ऑपोजिशन भी भारत की गवर्नमेंट के साथ खड़ी होगी और आपको करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये भारत के लिए नहीं, दूसरे देशों को भी अपनाना पड़ेगा। अगर 2% से ज्यादा आपका 2.0 से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है एक सेंचुरी में तो वो डिजास्टर की तरफ है।
तो इसके लिए कोई चारा नहीं है और भारत इसके लिए तैयार है। भारत एक रोड मैप बना के चल रहा है कि हमारे ये माइलस्टोन है, हम 2030 तक क्या करेंगे, 2070 तक क्या करेंगे, और हमने मन बना लिया है और उसके लिए हमारे पास कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजी है। ये एक इंपॉर्टेंट है। मगर जो बात प्रधानमंत्री कहने की कोशिश करें कि ये जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो एक सबसे ज्यादा बड़ा पोल्यूटर है, तो उनको ज्यादा कंट्रीब्यूट के जो ये एक लहर उठी थी, इस पे काबू पा लिया गया आपके ख्याल में? हाँ बिल्कुल। देखो ये जो अभी सुनने में ही आया, दो चार चीजें डेवलपमेंट हुई हैं कि अभी सुनने में आया कि आईएसआई जो है वो फिदाइन अटैक की तरफ जोर दे रही है। फिदाइन अटैक के लिए अलग टेररिस्ट भेजेगी, जिस प्रकार से 99 में एक फिदाइन अटैक का लहर चली थी, 99 से लेके 2002 तक। और जबकि कश्मीर घाटी के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था क्योंकि वहां से ट्रुप्स निकाल के कारगिल भेज दिए गए थे, और ये फिदाइन अटैक का दौर चला था जब कैंपों पे अटैक करते थे फिदाइन। और उस समय जो कैंप थे वो इतनी ज्यादा प्रोटेक्टेड नहीं थे क्योंकि आपको ने कभी सोचा नहीं था कि टेररिस्ट भी आपके ऊपर अटैक कर देंगे। आप टेररिस्ट पे अटैक कर रहे थे, आप उनको ढूंढ रहे थे। तो उस समय काफी नुकसान हुआ था शुरू में, मगर एक दो साल में हम सीख गए थे और हमने अपना जो कैंप की डिफेंस थी, सिक्योरिटी थी, उसको टाइट किया, सर्वेलेंस डिवाइस लगाए और अपनी जो काम करने की तरतीब को बदला। तो उसके बाद ये फिदाइन अटैक बंद हो गए थे क्योंकि ये जो भी फिदाइन अटैक करता था उसको बार ही मार गिराया जाता था। मगर अभी सुनने में आया आईएसआई जो है पाकिस्तान की आर्मी फिदाइन अटैक के लिए अलग जो आतंकवादियों को तैयार कर रही है, उनको पंप इन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी उनको पता है कि वहां पर 150 से 200 आतंकवादी रह गए हैं, वो बहुत कम है। अब वो भेजने की, नए आतंकवादियों को भेजने की कोशिश कर रहा है। और अभी लॉन्च पैड पे पूरे के पूरे 500-600 टेररिस्ट बैठे हैं और 6000 से 8000 के आतंकवादी जो कि लड़के आए हैं तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के, वो भी बैठे हैं। तो मुझे लगता है ये सर्दियां बहुत गर्म होने वाली हैं और पाकिस्तान पूरा जोर लगाएगा क्योंकि अब उसका जो ध्यान था अफगानिस्तान से काफी हद तक हट गया है, उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है। तो वो लगता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आतंकवादी भेजने की पूरी कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ आईबी सेक्टर से भी, और मुझे लगता है नेपाल और बांग्लादेश के रूट को भी वो ट्राई करेंगे और हथियार और एम्यूनिशन को वो ड्रोन के मदद से भेजेंगे। और ऐसा लगता है कि इस फेस्टिवल सीजन में वो धमाका भी करा सकते हैं बाकी जगह में, भारत के दूसरे हिस्सों में। और इस्लामिक स्टेट खोरासन भी काफी सक्रिय हो गया है, जिसके स्लीपर सेल हैं आपके केरला में। तो ओवरऑल जो है पाकिस्तान का फोकस अब रहेगा जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि अफगानिस्तान से उसका मन अभी जो है थोड़ा सा ध्यान हटेगा क्योंकि वहां उनको जो चाहिए था उनको लगता है वो हो गया है। तो भारत के लिए ये एक चेतावनी है, चौकन्ना रहने का टाइम है। काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हमारा पुख्ता है, मगर आप गार्ड डाउन नहीं कर सकते। और ये जो फिदाइन की मिली हैं आपको खबरें और एक प्रकार से इंटेलिजेंस, उस पर भी हमें एक्ट करना पड़ेगा, अपने तैयारी करनी पड़ेगी। एक बदला हुआ रूप आएगा अभी इस साल, इस सर्दियों में हाइब्रिड वारफेयर के साथ साथ ये फिदाइन अटैक होना और इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट सर्दियों में भी होना, ना कि जब पास बंद हो जाते हैं। तो एक चेतावनी है और ये एक चैलेंज है, और मुझे लगता है भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज इसके लिए तैयार हैं और अवाम भी इसके लिए तैयार है। मिर्जा साहब, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि का बॉर्डर पे इस वक्त जो टेंशन चल रही है, कम हुई है, ज्यादा हुई है?
है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर करके एक प्रकार से दोबारा समझौता हुआ था फरवरी इस साल से, तो उस समय शुरू में इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट्स कम हुई थी, मगर अभी फिर जोरों से चला दी है पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान ने जानबूझ के आपसे सीज फायर माना था, क्योंकि वो चाहते थे उनका फोकस अफगानिस्तान की तरफ जाए और यहां से ट्रुप्स ले गए थे। अब इनका फोकस पूरा जम्मू कश्मीर में है, तो वो मुझे नहीं लगता कि सीज फायर के बारे में कुछ सोचेंगे, वो इन्फिल्ट्रेशन करानी है। और मुझे लगता है कि ये सर्दियां बहुत गर्म रहने वाली हैं। पाकिस्तान ट्राई करेगा ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को भेजने की, आतंकवादियों को भेजने के लिए हो सकता है वो कवरिंग फायर भी दे, तो भारत के पास कोई चॉइस नहीं है, भारत उनको आतंकवादियों को मार गिराएगा और जो पोस्टों से इनको हेल्प मिलेगी उसके पे बर्बाद करेगा। ये मुझे नहीं लगता कोई शक और सवाल है, मगर ये सच्चाई है कि अब सिचुएशन काफी हद तक टेंस होने वाली है इस सर्दियों में, और पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर का माहौल को दोबारा खराब किया जाए। अगर वो नहीं कर पाता है तो उसकी बैटल लूज है। जनरल साहब, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम एलओसी पार करके भी जा सकते हैं मारने। बिल्कुल, ये तो इसमें कोई शक नहीं, जो हमने उड़ी में और पुलवामा के बाद जो बालाकोट में करके दिखा दिया है। मगर मुझे लगता है कि अब भारत के पास काबिलियत है, क्षमता है, भारत में रह के ही हम उनके लॉन्च पैड, उनके ट्रेनिंग एरिया को टारगेट कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे पास रफेल है, उसके पास स्कैल्प मिसाइल है जो कि एयर टू ग्राउंड 400 से 600 किलोमीटर तक फायर कर सकती है। जिस प्रकार से हमें मिराज 2000 क्रॉस लेके जाना पड़ा था खैबर पख्तून के इलाके में, बालाकोट में, अब वो कार्रवाई तो भारत में आप यहीं रह के कर सकते हो। तो मुझे लगता नहीं कि उसकी जरूरत पड़ेगी, भारत के अंदर ये काबिलियत तो क्षमता है, और भारत के पास ड्रोन भी आगे हैं जो कि आर्म ड्रोन जो हमें अमेरिका से मिले हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भारत किसी हद तक जा सकता है, अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, पाकिस्तान अगर आतंकवादियों को भेजने की कोशिश करता है या कोई ऐसा कार्रवाई करता है जिसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे लगता नहीं कि भारत कोई गवर्नमेंट इसके बारे में कोई भी दूसरा सोच विचार करेगी। और आज की तारीख में गवर्नमेंट ने भारत की जो डिफेंस फोर्सेज है, आर्मी को, वो पूरी की पूरी जो है खुली छूट दी हुई है। वक्त को देख के, सोच समझ के जो भी एक्शन वो चाहते हैं करना वो कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाकिस्तान को भी समझना चाहिए। अगर कुछ भी वो करते, मुझे लगता है भारत की क्षमता है ईंट का जवाब पत्थर से देने की, और ये पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। जनरल साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब आपसे मुलाकात होगी थर्सडे को यूके टाइम 6:30 बजे और नए मौजू के साथ। लेकिन हमारा जो गुफ्तगू का महवर होगा वो कश्मीरी होगा, यूनियन टेरिटरी और पीओजे के पीओजी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।